Hello learners, this is the last video for series completion. So here I will be talking about alphabet and alphanumeric series. This is verbal reasoning ability and I'm Dr. Anubhuti Singh. You have already seen the number series before. All the videos previously have been of number series. This one is alphabet and alphanumeric series. This is not as complicated as the number series. I find this to be slightly easier. थोड़ी easy रहती है ये number series से. So let's go ahead. So in order to actually solve the alphabet series, it is better अगर आपको ये याद रहे कि हर नंबर एक के साथ हर अल्फाबेट के साथ एक नंबर corresponding number attached होता है, which is the position of that number. So A1, B2. This way, if you see the entire thing, Z26, right? That's the 26th letter. Y is the 25th letter. So or alphabet. So just if you remember this happens. This makes things easier for you because आपको कई बार series पहचानने में आसानी होती है और आपको when the difference between these numbers, these letters, it becomes easy to find out because you have corresponding numbers with it. अब जब आप questions करेंगे तो आप समझोगे. Again, you may be thinking why it is written like this, A, B, C, D like this, and then after M, N like this, right? So it is moving backward this way because I also wanted to show that A or Z, there may be a correspondence of A with Z, B with Y, C with X. So many questions are also like this, जहाँ पे आपका A और Z, B और Y, C और X इस तरह से भी combination होगा. So that is why if you remember it like this, that will be easier for you. So let's move ahead. अभी देखिए जब questions आएंगे, so you will get an idea about it. So if you see this first question, A, C, F, J, then a question mark, again a question mark. So you have to find out what comes next in the series, right? So the next two letters in the series. So it's, if you see this, this is quite easy to understand. A, after that B, then C, then if you see D, E, F, G, H, I. So this is very clear that हर एक गैप है, गैप बढ़ रहा है. तो पहले एक का गैप है, दो का गैप है. इसको आप अगर corresponding numbers के साथ करें तो भी वो easy पड़ता है. जैसे A stands for 1, right? After that a gap of 1. C is 3. So 1 and 3 उसमें like you'll find this कि इसका 1 है, इसका 3 है. After that a gap of 2 and then F is 6. So that way अगर आप numbers attach कर दें तो आपको वो भी उसके हिसाब से भी easily होता है. Now because ये सीधे है, मतलब ये जो सीरीज है वो सीधी जा रही है A, B, C, D. So sometimes it becomes easy for you to, instead of going for numbers, आप numbers लिखने के बजाय सीधे सीधे A, B दिखता है, C, D, E. जब उल्टी सीरीज जाती है तो it becomes sometimes easy कि आप उसमें numbers attach कर दें. Again, it all depends upon आपको कैसे easy पड़ता है. So if you see this, it is very clear कि क्या next क्या आएगा. So J के बाद K, L, M, N, ये चार के gap के बाद next will be O, and after that how much, what will be the difference then? P, Q, R, S, T, then U. So the answer is definitely O, U, right? So let us move to the next one. I hope this is clear to you, this one. Now this is A, C, F, H, K, M, P, R, and then a question mark. So let's try to find out the answer there. Again, if you see here, आप यहाँ number से देख सकते हैं. A is 1, F is 6, K is 11, P is 16, right? अगर आप देखें यहाँ पे आपको clear दिखाई देगा कि क्या है. There is a difference of +5 series में +5 का difference हो रहा है. तो 16 यहाँ पे है तो +5 करेंगे तो 21. And what is 21? You will be able to see that, right? That is U. After that, अभी दूसरा वाला देखो क्या है. So the second letter, if you see the second letter here, this is C, H, M, R. So here also let us try to put the numbers in place of this. So C is 3, H 8, M 13, and R is 17, right? So here also you see a very clear series here. That is also a difference of 5, and if you see here 18 के बाद 5 का difference, so 23. So this is W. So the answer here is UW, right?
this is how you can go about. This is a simple question, so not a difficult one. So let's move forward then. The next one is YEBWFD. So this, let us try to find out this also. अब यहाँ पे तीन है, तीन letters हैं, तो तीनों को हमें देखना पड़ेगा कि उनका क्या series कैसे चल रही है. So the first one, if you see, Y is 25, W is 23. So we have put the numbers here. So here 25 and 23 के बीच में -2 हो रहा है, right? Again -2. So this must be 17. So what is 17 then? So this way, if we try to find out the next one, E is 5, F is 6, H is 8, K is 11. So you can easily see this is +1, +2, +3, and +4. So if you put +4, so this is 15. So the second letter should be 15, right? And then if we move to the third one, right, which is the third letter. So if you move to the third letter, you will see that yes, this is B is 2, D is 4, G is 7. So this is +2, +3, plus again G is 7. So now I is 9. So this way, if we see, this is +2, then +3, then again +2. So the next should be +3. So if you put +3 here, that will be 12. So अगर उस हिसाब से हम देखते हैं तो 17, then 15, then 12. 17 is Q, 15 is O, and 12 is L. And we have this as the answer. So this is how we can go about the series. I hope you are getting a hang of it. आपको समझ में आ रहा है. बीच बीच में आप वीडियो को stop करके, जैसे ही क्वेश्चन आता है stop करके, you can try on your own and you'll be able to get the answer. Now let us see this one. ये भी, it is not difficult. A, D, H, M, then a question mark, and then Z. Let's try to find out what this is. So क्योंकि ये सीधी सीरीज जा रही है, तो आप कभी कभी बोल के भी आसानी से हो जाता है कि A के बाद B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. तो आप यहाँ पे देखिए 2 का डिफरेंस, यहाँ 3 का, यहाँ 4 का, then the next letter, and then 5 का डिफरेंस, then the next letter, then 6 का डिफरेंस, and then Z. So this way you can get the answers like this. इस तरह से भी हो सकता है, क्योंकि ये सीधी सीरीज चल रही है, तो it is sometimes possible because it is easier to say A, B, C, D, E, F, G. So you can just put the letters here instead of putting the numbers. Both ways, whatever is like आपको जो भी comfortable हो, उस दोनों तरह से कर सकते हैं आप. So let's move to the next one. Now this is a different type of a question. If you see this question, this is the word here is perpendicular, right? Now if you try to see what is happening in this series, right? Here this is perpendicular, here P is not there, right? So what has happened here? Let us try to see. यहाँ अगर हम first और last letter निकालते हैं, तो फिर ये next आता है. Okay, so P cut from here and R cut from here. So you get like this. And here इससे इसमें आने के लिए क्या है? That means the second and third words. उसमें क्या किया है? Again you have cut the next, the first and the last letter. तो उससे जो आया वो next आ गया. So इसमें I think this is clear to you. अभी इसमें भी if you cut the first and the last letter, whatever comes should be the answer. First and last letter. So PENDICU, right? It stops at CU, at U. So let us see. There is no option like that. So none of these is the option. Okay. So this is how we work on this type of a question. Now इसमें भी देखो, ये भी उसी तरह का question है. So let us try to see इसमें क्या हुआ है. This word is attribution. Now if you see here, यहाँ से A cut हुआ है और यहाँ से N cut हुआ है, right? So let us try to see what has happened. A and N cut हुआ, तो the next letter, the next word is this, right? Now इधर और इसमें ऐसा first and last नहीं हुआ है. So what has happened here? Let's see. जो यहाँ से यहाँ आने में आप second से third word आप देखें तो first and second letter cut हुआ है. Okay? यहाँ से यहाँ first and last, यहाँ first and second, and that is how you have got this one. अब इधर से third से fourth आने में क्या हुआ है? First and last again cut, and you got this. So ये एक pattern दिखाई दे रहा है कि first and last पहले cut किया, उसके बाद फिर आपने first and second किया, then first and last cut किया, तो यहाँ से first and second cut होना चाहिए, right? And what do you get then? First and second cut करते हो तो UTI, and that is the answer. I hope this makes sense. आपको समझ आ रहा होगा. Now coming to the next one. फिर से जैसे पहले सीरीज थी उसी तरह का एक क्वेश्चन फिर से लिया है हमने. So A, C, D, G, H, I, and then how it goes. Let us see.
राइट. सो यहाँ पे B का डिफरेंस C D देन E F एंड देन G H I. सो यू कैन सी यहाँ 2, यहाँ पे 1 था. सो यहाँ पे G H I देन इट शुड बी J K L दिस वे. जो नेक्स्ट है वो आएगा. सो J K L. बट यहाँ पे देखो ये भी जो डिफरेंस है वो भी बढ़ रहा है और यहाँ पे जो एक्चुअली सीरीज है उसमें कितने लेटर्स हैं वो भी बढ़ रहे हैं. राइट. A B C D. So 2 here, a gap of 2 here, E F. Then G H I is in the series. तो गैप भी 3 का है. उसके नेक्स्ट क्या होगा, 4 आएंगे और गैप भी 4 का होगा एंड नेक्स्ट 5. राइट. सो दिस वे M N O P becomes the answer here. Let's move to the next one. I hope you're getting it. Right. I would definitely want कि आप वीडियोस बीच बीच में बंद करें वीडियो को और फिर अपने आप ट्राई करें and then see the answers or see how I'm going about it. Next one. If you see here, this is now alphanumeric series क्योंकि यहाँ पे alphabets भी हैं और numbers भी हैं. So what will be the last one here? So again going to, आप तो number series भी कर चुके हो और alphabet series भी कर चुके हो, तो फिर alphanumeric is just a combination of both these, right? There's nothing like इसमें कुछ भी नया नहीं है, दोनों का combination है. कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो numbers होते हैं वो इन्हीं letters के साथ attached होते हैं या और कभी कभी ऐसा होता है कि आप इसका नेक्स्ट टू नेक्स्ट एक्चुअली सीरीज नेक्स्ट में ही देखनी होती है. सो लेट अस ट्राई टू सी क्या होता है यहाँ पे. सो ट्राई टू फाइंड आउट द डिफरेंस हियर. इफ यू सी सीधे ही आप देखिए A, यहाँ पे B C D एंड E F G H I J दिस वे. इफ यू सी सो M N O P देन Q R it should be S. सो लास्ट में S आना चाहिए. राइट. दैट इज वन थिंग. नाउ हियर इफ यू सी आप ये उल्टा है तो either you put the numbers corresponding numbers according like Z का 26 है, X का 24 है, इस तरह से आप वो भी कर सकते हो. अदरवाइज देख के भी ये पता चल रहा है जैसे P Q R S T U V ऐसे भी आप कर सकते हो. whatever you find you are more comfortable in, जिसमें भी आपको स्पीड ज्यादा दिखती है वो कर सकते हो. तो यहाँ पे उल्टी चल रही है सीरीज. so, एक गैप छोड़ के नेक्स्ट. राइट. उस तरह से अगर आप देखते हो तो M N O P. राइट. तो O का गैप एंड देन यहाँ पे N होना चाहिए. सो N पहले S आया था तो यहाँ पे S और यहाँ पे N. सो दैट इज व्हाट यू विल गेट. S यहाँ पे N यहाँ पे. राइट. N O P एंड अगेन दिस इज P Q R S. राइट. अब हमें देखना है कि नंबर क्या आना चाहिए. सो फॉर नंबर लेट अस ट्राई टू सी नाउ. दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 6, दिस इज 21. सो हाउ डज दिस गो? लेट अस ट्राई. अभी वो N और S तो हमें आ ही चुका है. सो नाउ दिस इफ यू सी राइट try to see 1 2 and then 6 then 21. गैप्स नहीं, यहाँ पे एकदम से थोड़ा बढ़ रहा है. 21 के बाद सीधे 88 आया है और उसके बाद तो एकदम 445. राइट. सो let us try to see there may be something related with multiplication here, right? So if we try to multiply, क्योंकि गैप्स एकदम से बढ़ रहे हैं, शुरू में कम बढ़े हैं लेकिन उसके बाद 21 से 88, 88 के बाद 445, right? So एकदम से गैप बढ़ा है. That is why we may try multiplying. So if we multiply 21 with 4, we get what? We get 84, right? 84 plus 4 is 88. So let us try to see. करके देखने में क्या जाता है. तो into 4 plus 4 अगर यहाँ पे हो रहा है. Now see into 4 plus 4. So this 6 और 21 में अगर आप देखते हो तो नेक्स्ट आता है 18. So 6 into 3 is 18 plus 3 is 21. So यहाँ पे एक clear indication दिख रहा है into 3 plus 3, into 4 plus 4, right? So this is again if you see here, so into 2 plus 2 that is 4 plus 2. Again this is into 1 plus 1, so 1 plus 1 is 2. So ये clear हो गई हमारी सीरीज क्या है. Again एक और बचा है यहाँ पे 88 into 5 plus 5. That will be there and that is 445. So 88 into 5 is 440 plus 5 is 445. And then so the next one should be what? 445 into 6 plus 6. If you do that, you'll get a very clear answer, right? That is what the answer is. Then into 6 plus 6 is equal to, so into 6 is 2670 plus 6 it is 2676. So this is sorry this one 2676 and then N और S तो हम पहले ही देख चुके थे इसलिए ये आंसर है. ना यू में से इतना सब करने की जरूरत क्या थी. N और S इसमें और कहीं है ही नहीं. If you see here N T N N T N, तो जैसे ही NS आया तो फिर क्या जरूरत थी ये देखने की. यहाँ पे बाई चांस आपके पास NS वाला एक ही था लेकिन ये पॉसिबिलिटी है ना कि NS और में होता. तो अभी तो हम वी आर जस्ट
you can say that we are learning how to actually go about alphanumeric series. अगर competition में कभी ऐसा आता है और speed you have to save time, और if you are very clear कि ये n और ये s आ चुका है और दूसरा कोई option ऐसा नहीं है, तो you may skip, right? So you may move to the straight away the answer and then move ahead. लेकिन यहाँ पे हमने करके देखा. Let's move to the next question then. Here the question is slightly different. It is which is wrong. That means ये एक series है, so इस series में कोई एक ऐसा number है जो कि wrong है, which should actually not be the part of the series, या फिर ऐसा है कि वो उस नंबर या अल्फाबेट में कुछ ऐसा गलत है जिसकी वजह से वो सीरीज को तोड़ रहा है. सो बाकी सब सीरीज का पार्ट है, लेकिन एक नंबर, एक टर्म गलत दिया हुआ है. यू हैव टू फाइंड विच इज द रॉन्ग टर्म. ओके, इस तरह के क्वेश्चंस काफी बार आते हैं कॉम्पिटिशन में, और ये थोड़े से टफ होते हैं क्योंकि आप अच्छी खासी आपकी लॉजिक चल रही है और एक की वजह से आप कंफ्यूज, आपको पता तो है नहीं कौन सा गलत है, सो यू टेंड टू गेट कंफ्यूज. सो लेट अस ट्राई टू सी हियर व्हाट which number or which term, sorry, is there which is wrong. So let us see the first one. यहाँ पे हमें बहुत आराम से पता चल रहा है, right? G H I J K L M N O P Q R S T U V, sorry, S T U, yes. So what should come here? The next one, नहीं, next तो देखना ही नहीं है हमें, मैं आगे का देखने लगी. सो आई एम यूज्ड टू दैट ना कि नेक्स्ट क्या है. दिस क्वेश्चन इज नॉट अबाउट नेक्स्ट, सो दैट इज व्हाई व्हेन आई वाज फाइंडिंग वी, तो मैंने देखा यहाँ तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो कुछ गलत है. लेकिन यस, वी आर नॉट एक्चुअली सपोज्ड टू फाइंड द नेक्स्ट वन, वी आर सपोज्ड टू फाइंड व्हिच इज द रॉन्ग वन आउट ऑफ दीज. ओके, सो इधर देखते हैं नेक्स्ट जो हियर आई एम ट्राइंग टू मूव बैकवर्ड, और एज आई टोल्ड यू आप ये भी कर सकते हो कि इनके कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर्स आप लिखोगे तो एकदम से फट से आ जाता है आंसर. सो यहाँ पे अगर देखें तो LMNOPQRST, सो ये भी सीरीज सी लग रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है. सो यानी अल्फाबेट्स में तो प्रॉब्लम नहीं है, मे बी द प्रॉब्लम इज अ नंबर, राइट? सो ये अल्फाबेट्स के हिसाब से तो परफेक्ट जा रहा है, देयर इज नॉट इवन अ सिंगल रॉन्ग थिंग हियर. सो यहाँ पे क्या है, 4, 10, 20, 43, 90, राइट? आप इधर भी देखें अगर तो ऐसा लग रहा है कि देयर इज, यहाँ पे गैप है, उसके बाद थोड़ा बढ़ा गैप, उसके बाद थोड़ा ज्यादा गैप बढ़ा, उसके बाद और भी ज्यादा गैप बढ़ा, राइट? सो ऑलमोस्ट 40 का यहाँ पे गैप आ रहा है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 20 का आ रहा है. हाँ, इफ यू सी है यहाँ पे 20 से के ऊपर का गैप है, यहाँ 40 के आसपास, तो हो सकता है कि यहाँ into 2 हो रहा है कुछ. लेट्स ट्राई टू सी व्हाट इज देयर. सो इफ यू सी, हमने वो तो देख ही लिया है कि अल्फाबेट्स में कुछ गलत नहीं है. सो लेट्स सी दी नंबर्स नाउ. यहाँ पे अगर आप देखें, आप गैप देख रहे हो तो यहाँ पे 6 का गैप है, 10 का गैप है, 23 का, 47 का. इससे तो कोई लॉजिक नहीं बनती हुई दिखाई दे रही है. पर जैसे मैंने आपसे कहा, यहाँ 43 है, यहाँ 90 है, यहाँ 20 है, 43 है, 10 है, 20 है, तो कुछ मल्टीप्लाई 2 से होता हुआ सा तो लग रहा है. सो लेट अस ट्राई टू सी कि क्या हो रहा है. एग्जैक्ट 2 से नंबर नहीं आ रहा है, लेकिन 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसके आसपास आ रहा है. सो इफ यू सी 43 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आता है 86, उसमें ऐड करोगे 4 तो 90 आएगा. सो इंटू 2 + 4 अगर यहाँ करते हो तो 90 आता है. नाउ चेक दिस वन, ये 20 इंटू 2 + 3 करते हो तो 43 आता है. सो यहाँ इन दो से थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, इंटू 2 + 3 इंटू 2 + 4, तो हो सकता है कि यहाँ पे इंटू 2 + 2 इंटू 2 + 1 होना चाहिए, अगर ये सही है तो, राइट? लेकिन यहाँ इंटू 2 है और यहाँ पे इंटू 2 + 2 है, सो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकता है यहाँ पे हो. बट नाउ ट्राई टू सी, यहाँ इंटू 2 + 3 इंटू 2 + 4 करके ये दिख रहा है, तो इसलिए यहाँ पे अगर हम इंटू 2 + 2 और इंटू 2 + 1 करते, क्या उससे आंसर आता? हमें पता है कि इसमें से एक रॉन्ग है, राइट? सो जो सीरीज है वो कहीं पे तो ब्रेक होगी. सो ये दोनों अगर हम इसके हिसाब से चलें तो यहाँ पे क्या करेंगे? सो उसके हिसाब से इंटू 2 + 1 करके देखते हैं. 4 इंटू 2 + 1 विल बी 9, और 9 इंटू 2, यहाँ पे इंटू 2 + 2 आता, तो 9 इंटू 2 + 2 वुड बी 20. सो दैट मीन्स यहाँ अगर 9 होता तो सब सही होता. लेट्स सी दैट. ये मैंने आपको बोला ना, इन दोनों को देख के आपको ये आइडिया लगना चाहिए कि यहाँ पे इसी सीरीज के हिसाब से जाना चाहिए. सो इंटू 2 + 1 इंटू 2 + 2 जब आप करेंगे, उसके हिसाब से यहाँ पे 9 आ जाएगा. ओके, 9 आएगा तो इंटू 2 + 2 आता है और वो 20. सो 10 की जगह अगर 9 होता तो फिर ये सही था. सो दैट मीन्स दिस वन इज रॉन्ग. दिस इज हाउ वी हैव गॉन. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट दिस क्वेश्चन. इसमें भी आप खुद ट्राई करिए, ये काफी इजी है.
D4, F6, H8, J10, ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर्स ही हैं, राइट. सो व्हाट विल कम नेक्स्ट एंड नेक्स्ट, द नेक्स्ट टू नंबर्स बहुत क्लियर है, राइट. ये तो पता चल रहा है कि ये इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर्स हैं. अब D, E, F, G, H, I, J ये भी पता चल रहा है. सो लेट्स सी. तो दिस इज एक एक का गैप है, तो यहाँ पे अगर H, I, J के L होना चाहिए, M, N होना चाहिए, L का corresponding 12 and N का 14. So this is L12 and 14, right? This is the answer. Let's move to the next one. Now this is 2B, 4C, 8E and 14H. Let's try to understand this question. Easy है, this is not difficult at all. So बस आपको practice दे रही हूँ और कुछ नहीं है. So let us try to see the here. What is it? B, then C, D, E, F, G, H, right? तो यहाँ क्या हो रहा है? एक का गैप है, यहाँ दो का गैप है, तो यहाँ तीन का गैप होगा, राइट. सो H के बाद I, J, K, L, राइट. सो दैट मीन्स ये जो लेटर है वो तो L है, अब यहाँ L दो में है. देन व्हाट दिस इज. सो लेट अस ट्राई टू सी. अब नंबर्स को अगर हम देखते हैं तो क्या होगा, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है. सो व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ लाइक व्हाट डू यू फाइंड द डिफरेंस, व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंस इज दिस? +2, +4, +6, +8. बहुत क्लियर दिख रहा है, राइट. यहाँ +6 तक तो आपको पता ही है, तो फिर +8 आएगा. +2, +4, +6, so +8 will be 22. So we have the option. This is clear. Let's move to the next one. Here, right, N. Now this is what? This is again उल्टा जा रहा है ये. B, C, D, E, right. Again यहाँ पे K, L, M, N, right. So यहाँ पे K, M, just see that A, B, C, D, E. Now this is K, L, M, N. So this way if we go, इसका मतलब यहाँ भी दो, इधर भी दो का गैप अगर आता है और इधर भी दो का गैप आता है, does it make sense? Let us see. So कैसे करेंगे फिर अभी? B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Yes, सही जा रहा है. So that means the first number here, first letter here should be H. Now what about this? इसको कैसे देखेंगे? N, O, P, right? And then this is T, U, V. तो मतलब एक ही का गैप दिख रहा है. अगर इसी तरह से हम यहाँ पे भी करते हैं तो क्या does it make sense? So N, O, P, Q, R, S, T, U, V. So that is fine. H और R तो clear हो गया. So let us try to now find what number. This is 5, this is 7, this is 14 and this is 19. How much is the gap? What is the difference now? 5 और 7 के बीच में 2 का difference है and 14 और 19 के बीच में 5 का difference है. So you can see very clearly कि यहाँ पे दो ऐसे हैं. So यहाँ +2 है, यहाँ 5 है, +5 है. So it may be +2 के बाद +3, +4. It may be there. अगर है और वो ऑप्शन में है then fine. और अगर +3 के बाद जो भी आता है उसके बाद +4 के बाद 14 आ जाता है, that means there's no problem. So 7 + 3, how much is that? 10, right? 7 + 3 is 10 and 10 + 4 is 14. So that makes sense. 10 आ गया और ये हमारा ऑप्शन भी है. So H, 10, R. I hope you got the answer, right? Let us move to the next one now. अब ये डिफरेंट तरह की सीरीज है, राइट. अल्फाबेट सीरीज में ये थोड़ा सा देखो अलग तरह की सीरीज आई. इसमें यू हैव टू फिल इन द गैप्स एंड जो गैप्स यहाँ पे आएंगे, मतलब ये गैप्स में जो भी नंबर्स आएंगे उनको मिला के आपको इसी सीक्वेंस में होने चाहिए वो. सो इफ यू सी दिस नंबर, इस तरह की सीरीज को कैसे आप हैंडल करते हो? यहाँ पे आपको ए बी ए, इसमें भी दो तीन तरह की चीज हो सकती है. पहली होती है कि एक ही सेट ऑफ लेटर्स हैं, वही बार बार रिपीट हो रहे हैं, वो हो सकता है. और कभी कभी वो मूविंग सेट होते हैं. सो अगर वही रिपीट हो रहे हैं उसके लिए देखते हैं ए बी ए, राइट. यू से बी, आप यहाँ देख रहे हो ए के बाद बी, बी के बाद ए, यहाँ पे भी बी के बाद ए, यहाँ ए के बाद बी. सो हो सकता है ए बी यही चल रहा हो, राइट. इट मे बी पॉसिबल. सो अगर ऐसा चल रहा है तो ए बी ए देन बी ए बी बी. हाँ, इट मेक सेंस. सो इन गैप्स में अगर आप ए बी, सो ये दिख रहा है कि ए के बाद बी, फिर बी के बाद फिर ए, फिर ए के बाद बी, मतलब it may be, the series may be formed by AB, repetition of AB. So that is how it makes sense. अब यहाँ पे देखो, this is next question.
इसमें भी पहले देखो कि कुछ ऐसा है क्या जो रिपीट हो रहा है। ओके, यहाँ पे देखो GFE, देन गैप, देन IG। नाउ यहाँ दिख रहा है F के बाद E, कहीं और दिख रहा है F के बाद E? हाँ, F के बाद E दिख रहा है। यहाँ दिख रहा है G के बाद F फिर E, कहीं ऐसा हो रहा है G के बाद F E नहीं है लेकिन G के बाद F दिख रहा है, राइट? और G के बाद नथिंग बट E ऐसा है, तो यहाँ F हो सकता है। सो जहाँ पे भी यहाँ EII दिख रहा है, सो EI मे बी I here, right? So that means you can, how do you have to go about these kinds of series? इस तरह की सीरीज में आप पहले देखो, जैसे अगर तीन चीजें हैं, तीन टर्म यहाँ पे टर्म्स हैं GFE, अगर मूविंग सीरीज नहीं है, अगर स्टैटिक है, मतलब सेम लेटर्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो फिर आप कोई ऐसे ही देखना होता है। GFE है, सो यहाँ पे कहीं पे भी जहाँ G है उसके बाद F और E क्या आप डाल सकते हो, ट्राई टू सी दैट। इसी तरह से EII है, जहाँ पे भी E है उसके बाद I और I क्या डाल सकते हो। इफ दैट इज पॉसिबल, दैट मीन्स कोई एक नंबर ही, कोई एक टर्म ही रिपीट हो रहा है, राइट? सो यहाँ GFE आपको दिखाई दे रहा है, तो आप एक्चुअली यहाँ देखो GF है तो यहाँ E हो सकता है, यहाँ पे GFE हो सकता है, इट इज पॉसिबल, राइट? सो इसी तरह से नेक्स्ट अगर आप देखो EII दिख रहा है, अगर EII है तो I, यहाँ पे भी I करें तो EII हो जाता है, यहाँ पे भी EII, सो दैट मीन्स इट इज पॉसिबल। यहाँ पे GFEII, फिर से GFEII, दिस में बी द सीरीज दैट इज देयर। और अगर आप उस सीरीज के हिसाब से करोगे तो फिर यहाँ पे क्या आया, GF, दिस इज द सीरीज, ये पता चल रहा है आपको कि GFEII ही है जो कि रिपीट हो रहा है। सो इफ दैट इज सो, उसको आप यहाँ पे लिख लो GFE फिर I GFEII GFEII GFEII, so this is what is the answer. So IFGIE, this one. Okay, third one. This is how we have to go about it. Now the next one is this. Now if you try to see this one, यहाँ पे B के बाद C आ रहा है, राइट? लेकिन यहाँ B के बाद A आ रहा है, यहाँ C के बाद A है, लेकिन यहाँ पे, यहाँ फिर से C के बाद A आया है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हर जगह पे एक ही तरह का हो, राइट? यहाँ A के बाद B है, लेकिन यहाँ पे लेट अस सी, A के बाद B आ सकता है, लेकिन अगर यहाँ A के बाद B आएगा तो B के बाद फिर से A आ गया, यहाँ पे B के बाद C है। इसका मतलब एक ही चीज तो नहीं रिपीट हो रही है, दिस मे बी अ मूविंग सीरीज, राइट? आर यू गेटिंग दैट? B के बाद C, राइट? अगर B के बाद C है तो यहाँ भी B आना चाहिए, पर BC फिर BC, लेकिन यहाँ पे BA है। इसका मतलब एक ही चीज नहीं है, एक ही सेट ऑफ लेटर्स नहीं है जो रिपीट हो रहे हैं। सो दैट मीन्स you can easily say that it is a moving series. So it may be something like ABC, अगर वो है, फिर आपने उसी को आगे शिफ्ट किया, so BC फिर A, उसके बाद आगे शिफ्ट किया CAB, फिर आगे शिफ्ट किया ABC, तो फिर से ABC आ गया, उसके बाद फिर से BCA CAB ABC। इसको हम कहते हैं मूविंग सीरीज, कि आपकी सीरीज जो है वो एक एक आगे बढ़ रही है। So if you try to use this here, you will get the answer. So it is ABC, BCA, CAB, ABC, BCA. This way, if you try to fill in the gaps, you will be getting the answer as A, B, C, B, B. Right? So these are some of the questions related to alphabets. The alphabet series, the alphanumeric series. I hope you have got an idea about these. Now इधर एक और देख लेते हैं, ये भी अल्फा न्यूमेरिक है और ये बहुत इजी है। यहाँ 2 3 B देन डैश 6 F G। अब इसको देख के आपको क्या, आपको सबसे पहले ये देखना होता है कि क्या समझ में आ रहा है। यहाँ पे दो नंबर्स हैं, उसके बाद एक लेटर है, एक नंबर है, दो लेटर्स भी हैं, राइट? तो आप देख रहे हैं दो नंबर्स भी हैं, उसके बाद दो लेटर्स भी हैं, अल्फाबेट्स भी हैं, राइट? फिर यहाँ पे दो अल्फाबेट्स हैं, सो इट मे बी दैट दो नंबर्स दो अल्फाबेट्स, दो नंबर्स दो अल्फाबेट्स, दो नंबर्स दो अल्फाबेट्स, दो नंबर्स दो अल्फाबेट्स, it may be possible. So if that is so, is there any kind of a relation between these two numbers and then two alphabets? This is, now try to see this relation. If you see, जैसे मैंने कहा दो नंबर्स दो अल्फाबेट्स, दो अल्फाबेट्स, तो इससे आपको ये आइडिया लगा कि दो नंबर्स दो अल्फाबेट्स, ऐसे सीरीज चल रही है। अब इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग चीजें देखनी है आपको।
और उस पे आपको बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे b है, विच इज द नंबर रिलेटेड टू b, राइट। ऐसे तो यहाँ पे इससे ये रिलेटेड है, मे बी इससे ये रिलेटेड हो, इससे ये रिलेटेड है, उसके नेक्स्ट से ये हो। अगर इससे ये रिलेटेड है क्या, 6 और f, yes, this is the number corresponding to this, right? तो ये वाला इससे, ऐसे ये वाला इससे, ये वाला इससे, अगर देखते हैं हम ये वाला इससे और ये वाला इससे होना चाहिए, तो फिर ये भी होना चाहिए 8h, दिस ऑल्सो मेक सेंस। तो ये हमें बहुत क्लियर समझ में आ रहा है कि ये नंबर जो फर्स्ट लेटर नंबर है वो फर्स्ट लेटर का कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर है। इस तरह से हम इसको फिल कर सकते हैं। एंड व्हाट अबाउट द सेकंड वन, सेकंड वन आप देखो तो उसमें अब यहाँ पे दिस इज द फर्स्ट लेटर, दिस इज द सेकंड लेटर, this second letter maybe this is related to here, so let us see। अगर हम वो डालते हैं 2 का B, 3 का C, ओके, 6 का F है, तो फिर G के लिए 7। नाउ यहाँ पे D लिखा हुआ है, तो वी कैन गो लाइक दिस, D का 4 होता है, 5 किसका होता है, E का, H का 8 होता है, I का 9। if we put that we get the answer C 7 4 E 9। Do we have that? Yes. This is how we go about these series, right? I hope you got the answer. So please practice more, do as many questions as you can. Hopefully you'll be able to do well. Thank you.